Friends, parents' habits impact on their children. Today, we will know about the habits of parents that contribute to a child's growth. Welcome to Prakash channel, दोस्तों. We are going to know about the good habits of parents, which are helpful to develop a child's growth. The power of positive parenting. Healthy parenting determines a child's destiny, fostering curiosity, sound habits, emotional quotient, and learning builds self-confidence, stress resilience, and mental development. Also, enables children to succeed in their life. Then allow free play and exploration. Unstructured play boosts creativity, social intelligence, independence, and decision making in your child, helping children develop problem solving abilities and emotions, resilience in a fun and engaging way. And now we will know about the encourage questions and curiosity. Friends, favoring a child's innate curiosity by responding patiently to questions allows the development of problem solving capacity, creativity, and a lifelong passion for learning that forms their mental and emotional growth. Read to them daily. Reading aloud improves vocabulary, comprehension, and imagination with fostering emotion bonds, developing cognitive skills, and preparing children for academic success from an early age. Now, we will know about engage in meaningful conversations. Friends, two-way communication between parents and children are most powerful to know good habits from parents. Talking openly about ideas, emotions, and experiences strengthens language development, emotional intelligence, and self expression, fostering deeper connections between parents and children. Next is very important point, and that is listening them and limiting screen time and promote interactive learning. Encouraging activities like puzzles, storytelling, and hands-on experiences enhances critical thinking, focus, and cognitive skills, reducing passive consumption of digital contents. Now we'll know about the healthy, wealthy, and wise. Encourage a healthy lifestyle, a balanced diet, regular exercise, and sufficient sleep. Enhance cognitive development, memory, sharpness, retention, focus, and overall well being, laying the foundation for lifelong healthy habits. Now we will know about the introduce problem solving challenges, giving children as appropriate puzzles, riddles, and real world problems to solve independently boosts confidence, logical thinking, adaptability, and decision making skills in your children. Now, being a role model for learning. When kids observe their parents reading, discovering new things, and learning curious, they automatically get an appetite for learning and developing. Now, the next is teaching emotional intelligence and resilience, assisting children to identify, communicate, and regulate emotions positively builds empathy, patience, and self confidence, setting them up for
success in life and work. These are the manners and these are the habits which will be help in your child and children to grow them with their age. Now friends, we will know all things in Hindi also. दोस्तों, बच्चों के सर्वांगीण विकास यूं कहें कि ऑल राउंड ओवरऑल विकास में, डेवलपमेंट में पेरेंट्स की जो आदतें हैं, हैबिट्स है, वो काफी हद तक उन्हें प्रभावित करती है। दोस्तों, माता पिता का व्यवहार, उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव सीधा उनके बच्चों पर पड़ता है। यदि वो कुछ गलत करते हैं तो उनका बच्चा भी गलत ही सीखता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज और बता दें आपको कि मनुष्य जो है, मानव जीवन है, उस पर गलत चीज का पहले असर पड़ता है और जो अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज का बाद में असर पड़ता है। ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी भी है दोस्तों। इसलिए किसी भी बच्चों के जीवन में माता पिता की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, एक चीज और बता दें आपको कि बच्चों के लिए पहला विद्यालय उसका घर और पहले शिक्षक उसके माता और पिता है। कोई भी बच्चा शुरुआत में अपने माता पिता से ही सारे काम सीखता है। बोलना चलना, जो भी उनका व्यवहार है, वो सारा अपने पेरेंट्स से सीखता है। माता पिता न सिर्फ अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देते हैं, बल्कि सही गलत का पहचान कराते हुए अपने बच्चे के फ्यूचर को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, माता पिता द्वारा सिखाए हुए कार्यों को जीवन में उतार कर उनके बच्चे सफलता भी हासिल करते हैं। दरअसल माता पिता का व्यवहार, उनके द्वारा किए गए कार्यों का सीधा असर उनके बच्चों पर पड़ता है और वे माता पिता की वे आदतें बच्चों के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। आप जैसा करते हैं, आपके बच्चे वैसा ही देखकर सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो क्या है कि एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है, उसको हम जिस शेप में ढालना चाहे वो ढल जाता है। तो दोस्तों, हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसका निर्माण करना है। यदि आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको हमेशा उन्हें पॉजिटिव और अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। पहला तो क्या है, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। दोस्तों, आपके बच्चे छोटे हो या बड़े हों, सभी माता पिता से प्यार चाहते हैं। खासकर छोटे बच्चों को आप सिर्फ अपना प्यार देकर ही कोई चीज सिखा सकते हैं। इसलिए आप अपने कीमती समय में से कुछ पल ऐसे निकालें जो सिर्फ उन आपके बच्चों के लिए हो। उस समय कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी बाधा बीच में नहीं आनी चाहिए। केवल आप और आपके बच्चे दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, संचार होना चाहिए। दोस्तों, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है, क्या आगे उसकी फ्यूचर की जो स्ट्रेटेजी है, वो आप उस समय उससे जान सकते हैं यदि आपने पूरा समय वो क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दिया। उसके बाद है, बच्चों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों, आप यदि क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं तो आपको उनके दिमाग को पढ़ने की बहुत अच्छी कला आती है। दोस्तों, आप अपने बच्चों के दिमाग को पढ़कर उसके अंदर पॉजिटिविटी भर सकते हैं और नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं, और वो क्या चाहता है, उसको सही है या गलत है, उसका आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, स्कूल के कार्यों का घर पर रिवीजन करवाना चाहिए। दोस्तों, कई ऐसे शिक्षक होते हैं जो बच्चों को खुले दिमाग से सीखने का अवसर देते हैं। माता पिता को भी सलाह देते हैं कि बच्चों पर कोई दबाव ना डाले। दोस्तों, कभी भी बच्चों पर प्रेशर ना डाले, क्योंकि दोस्तों इसका जो खामियाजा है हम आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हमने जो नहीं किया, हमारी जो ओवर थिंकिंग है या हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हम बच्चों को ये ऊपर थोपते हैं कि वो करे जो हमने नहीं किया। दोस्तों, ये प्रेशर उस पर ना डाले। बच्चा जो करना चाहता है वो करने दे, लेकिन ये बस ध्यान रखें कि वो पॉजिटिव हो, समाज के निर्माण में हो, उसके खुद के निर्माण में हो और भारत के भविष्य के निर्माण में हो। दोस्तों, उसका अभ्यास घर पर हो। जो वो होमवर्क दिया जाता है स्कूल में, उसको घर पर अभ्यास करवाए और रिवीजन करवाए, ताकि एक एक्सरसाइज की और रिवीजन की आदत उसके अंदर अपने आप डेवलप होगी। बच्चों के पढ़ाई के समय को करें निर्धारित। दोस्तों, 24 घंटे पढ़ाई करो, ये नहीं करना है। उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमारा दायित्व है कि हम हमारे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए खुद को सजग बनाएं। तो इसलिए यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो उसे जोर जोर से पाठ पढ़ने की आदत डालें। इससे यदि यह होगा कि आपका बच्चा गलत पढ़ रहा है या सही, इस बात की आपको जानकारी मिल जाएगी।
और जहां आपका बच्चा गलत पढ़ रहा हो आप सही पढ़ने में उसकी हेल्प कर सकेंगे। और दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा पढ़कर ही सीखे, खेल खेल में भी सीख सकता है। तो दोस्तों उसके साथ उसको कुछ फ्री टाइम दीजिए और अपने बच्चों को सीखने में मदद कीजिए। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, लेकिन कब बनेंगे इसके लिए माता पिता को जिम्मेदारीपूर्ण रवैया अपनाना पड़ेगा और बच्चों में आदत डालनी पड़ेगी नेतृत्व क्षमता की। सभी माता पिता को अपने बच्चों की सही प्रेरणा देनी चाहिए जो बच्चों के अंदर से जागृत होती है। दोस्तों सफलता और असफलता को एक समान समझने की कला भी उनमें बच्चों में विकसित करें। बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है असफल होने के बाद, अनसक्सीड होने के बाद, तो दोस्तों उसे आपको ऐसा दिखाना है कि बेटा कुछ नहीं है। सफलता और असफलता तो दो सिक्के के दो पहलू है, कभी सफलता कभी असफलता। यदि हमने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो हम सफल हो सकते हैं और यह भविष्य में बहुत कारगर साबित हो सकता है आपके बच्चे के लिए। दोस्तों अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है अपने बच्चे के शेड्यूल को हमेशा व्यस्त ना रखें। पढ़ो 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 बार बार ये नहीं कहना है, नए पूरे दिन उसे खेलने में लगाना है। उसके शेड्यूल को भी व्यस्त नहीं रखना है, उसको थोड़ा उसके जीवन में इंटरेस्ट घोलिए, उसके जीवन में मौज मस्ती आनंद होना चाहिए ताकि वो खेल खेल में सीख सके। और दोस्तों पर जो भी बच्चा करना चाह रहा है उसमें बाधा ना डाले, बस एक ध्यान रखना है आपको कि वो नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। उसकी सोच, उसका जो काम है, उसके भविष्य को निर्माण की दृष्टि से देखना चाहिए, न कि उसके भविष्य को जो खलल में डाले वो काम नहीं करने देना चाहिए। अब है नई चीज से सीखें और बच्चों को भी सिखाएं। दोस्तों बच्चों के रोल मॉडल बनने का यह बहुत ही अच्छा तरीका है। दोस्तों आप खुद भी कई चीजों को, ऐसी नई चीजों को सीख सकते हैं जो आपको पता नहीं है, जो आप कोशिश कर सकते हैं। नई चीजों की जानकारी आप खुद से अपने बच्चों में स्थानांतरित कर सकते हैं। आप खुद सीखें फिर बच्चों को सिखाएं या बच्चों को मोटिवेट करें। बच्चे आपको नई चीज सीखता देखकर खुद वो नई चीज सीखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि आपके सामने कोई ऐसी घटना घटी या आपने किसी ऐसी घटना के बारे में सुना या देखा जिससे आपके बच्चे को प्रेरणा मिल सकती है, तो आप उस जानकारी को अपने बच्चों के साथ शेयर करें। जैसे कि आपने कोई एक्सीडेंट हुआ और आपने उसकी हेल्प की, तो दोस्तों आप अपने बच्चों को वो बताएं ताकि उनके मन में जो भ्रांतियां हैं कि यदि हमने किसी की हेल्प की तो हमें पुलिस का सामना करना पड़ेगा या हमें पचड़े में पड़ना पड़ेगा या हमें प्रपंच में पड़ना पड़ेगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आप जैसा करेंगे आपके बच्चे हैं वो आपको अपना रोल मॉडल समझकर वैसे ही करने की कोशिश करेंगे और अपने भविष्य के निर्माण में आपके योगदान को, आपकी झलक को साफ देख पाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ हैबिट्स जो आपके बच्चे आप में देखना चाहते हैं और आपसे सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या हम और आप एक ऐसे माता पिता है जिनमें ये हैबिट्स है, या वे माता पिता है जो अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण में उनका योगदान देने के लिए सक्षम है? तो दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। और यदि परम क्लासेस चैनल का यह वीडियो देखकर समझकर आपको समझ पाए अपने बच्चों को, तो परम क्लासेस चैनल का यह बड़ा ही सौभाग्य होगा कि समाज के निर्माण में हमारा एक कदम आपके बच्चों और आपके लिए सहयोगी साबित हुआ। धन्यवाद।